بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، سر ظفر یوٹیوب کے ٹویٹر چینل سے آپ کے سامنے آج ہم آپ کو پاکستان کی دکھ بھری کہانی سنانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج دکھ بھری کہانی کیوں؟ اکثر اوقات ہمارے دماغوں میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ پاکستان اتنا غریب ملک کیوں ہے؟ اگر آپ غور سے دیکھیں تو 1947 سے لے کے آج تک پاکستان قرضے لیتا آ رہا ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اگلی کئی نسلیں قرضے میں ہی چلیں گی۔ تو آج ہم انہی باتوں کا جائزہ لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ وہ کون کون سی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر پاکستان مقروض بھی ہوتا چلا جا رہا ہے، غریب بھی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیا پاکستان کو اللہ پاک نے کچھ نہیں دیا؟ کیا پاکستان کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں وافر مقدار میں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ انہی باتوں کا ہم آج جائزہ لیں گے۔ وجوہات کا تو ہم تذکرہ اگلی ویڈیو میں کریں گے، لیکن آج ہم بیسیکلی یہ باتیں بتائیں گے آپ کو کہ پاکستان اکنومیکلی کس جگہ پر کھڑا ہے، پاکستان دنیا میں اکنومکس میں کن حالات میں آگے چل رہا ہے، کن حالات میں آگے چل سکتا ہے، پاکستان کے پاس پوٹینشیل کتنا ہے۔ آئیے ہم جائزہ لیتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ دنیا میں جو لوگ یہ سوچتے ہیں، اسپیشلی پاکستانی، کہ پاکستان ریسورسز کے لحاظ سے غریب ممالک میں شامل ہے، تو ایسا ہرگز 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 نہیں ہے۔ ان لوگوں کی سوچ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ پاکستان دنیا کی بہترین 10 نیشنز میں سے ایک ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ ممالک جن کے پاس اللہ پاک کا دیا ہوا سارا کچھ ہے، اکنامکس ریسورسز، تو پاکستان ان ممالک میں 10 ممالک کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم کچھ چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ میرے اسٹوڈنٹس حیران ہو جائیں گے آج کچھ باتیں سن کر کہ پاکستان دنیا میں عالمی رینکنگ میں اس وقت پاکستان دنیا کے 10 ممالک میں شامل ہے بے شمار چیزوں میں۔ میں نے چند ایک چیزیں لکھنے کی کوشش کی ہے، بہت ساری چیزیں تو لکھنا اتنی چھوٹی سی ویڈیو میں ممکن بھی نہیں، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ تو پاکستان، میرے اسٹوڈنٹس جانتے ہوں گے کہ بیسیکلی ایگریرین کنٹری ہے۔ ایگریکلچر سے ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہم انڈسٹریل کنٹری بعد میں ہیں، ہم ایگریکلچرل کنٹری پہلے ہیں۔ تو ہم ایگریکلچرل کنٹری ہوتے ہوئے جائزہ لیتے ہیں پہلے ہم اپنی ایگریکلچر پروڈکٹس کا کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں۔ میرے اسٹوڈنٹس یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ پاکستان فروٹ کی پیداوار میں پوری دنیا میں 6 نمبر پر ہے۔ صرف 5 ممالک ایسے ہیں جو فروٹ کی پیداوار میں پاکستان سے اوپر ہیں، ورنہ پاکستان دنیا میں فروٹ پیدا کرنے کا 6واں بڑا ملک ہے، جس میں ہماری ایپریکوٹ ہے، مینگو ہے، سیب ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں ایسی جو کہ ہم پیدا کرتے ہیں۔ پاکستان سبزی کے لحاظ سے دنیا کا 10واں بڑا ملک ہے۔ صرف 9 ممالک ایسے ہیں جو پاکستان سے بھی زیادہ سبزی پیدا کر سکتے ہیں اور ہم دنیا کی 10ویں بڑی قوم ہیں۔ اس کے بعد ہم گندم میں دنیا کے 8ویں نمبر پر موجود ہیں۔ گنے کی پیداوار میں پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ دودھ کی پیداوار میں آپ حیران ہو جائیں گے ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس کہ پاکستان پوری دنیا میں دوسرا بڑا ملک ہے۔ پاکستان بکری کے دودھ اور بھینس کے دودھ میں دونوں میں دوسرے نمبر پر ہے، اور اس کے باوجود پاکستان خشک دودھ ہالینڈ سے منگواتا ہے۔ بڑا افسوس ہے، آگے چلیں گے ہم اس بات پر۔ پاکستان گوشت کی پیداوار میں دنیا کے 3رے نمبر پر موجود ہے۔ قربانی کے لحاظ سے سعودی عرب کو ہٹا دیا جائے تو پاکستان دنیا کا سب سے بڑا قربانی کرنے والا ملک بھی ہے۔ سعودی عرب میں ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ حج کا ایک فریضہ ہے جس کی وجہ سے قربانی کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اگر اس کو ہٹا دیں تو پاکستان قربانی کرنے والا بھی دنیا کا سب سے پہلا بڑا ملک بنتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان زرعی ملک ہونے کی حیثیت سے زرخیزی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے پاس 4 بہترین موسم ہیں جو ساری دنیا میں نہیں۔ دنیا کے کچھ ملک ایسے ہیں جو انتہائی سرد ہیں، کچھ ملک ایسے ہیں جو انتہائی گرم ہیں۔ ہم معتدل آب و ہوا کے مالک ہیں۔ 4 موسم اللہ پاک نے بھرپور ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ صحرا ہمارے پاس ہے، جنگل ہمارے پاس ہے، میدان ہمارے پاس ہے، اور تو اور پاکستان میں نہری نظام دنیا کا سب سے بہترین اور سب سے بڑا نہری نظام ہے۔ پوری دنیا میں کہیں بھی نہری نظام پاکستان جتنا بڑا نہیں، پاکستان جیسا معتبر بھی نہیں ہے۔ سونے کی پیداوار میں میرے اسٹوڈنٹس بڑے حیران ہوں گے سن کر کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں سونا نہیں۔ سونے کی پیداوار میں پاکستان دنیا کا 4تھا بڑا ملک ہے اس وقت۔
चौथा बड़ा मुल्क होने का मतलब समझते हैं मेरे स्टूडेंट क्या है। आप ये सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा मुल्क है, चौथी बड़ी कंट्री हैं हम, तो फिर हम गरीब क्यों हैं। अगली वीडियो में हम जायज़ा लेंगे इन बातों का। मैं यहाँ आपकी दिलचस्पी की खातिर बताता चला जाऊँ कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान का सूबा है एक जागी, उसमें सोने का एक पहाड़ जो कि तकरीबन 100 किलोमीटर लंबा है, वो सारे का सारा सोने से लदा हुआ पहाड़ है। लेकिन हमारी नालायकियां हैं कुछ, बात करेंगे अगली वीडियो में हम। सोने की पैदावार में पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान कोयले की पैदावार में दुनिया के 7वें नंबर पर है। पैदावार में, ज़खायर में नहीं, ज़खायर में तो हो सकता है हम दूसरे नंबर पर ही हो जाएं। तो पाकिस्तान दुनिया की 7वीं बड़ी नेशन है जो कि कोयले की पैदावार में या कोयले के ज़खायर में नंबर पर हैं हम। मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान में ये जो कोयला है, ये ईरान और सऊदी अरब के तेल के ज़खायर में जितनी आमदनी हासिल होने की तवक्को है, पाकिस्तान के कोयले के ज़खायर से हासिल होने वाली आमदनी उस तेल और उसके गैस के ज़खायर से ज़्यादा है। गोया कि पाकिस्तान सिर्फ कोयले को ही निकाल ले और उसको इस्तेमाल करे तो पाकिस्तान सऊदी अरब और ईरान से आगे निकल जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान कॉटन में दुनिया के 6 नंबर पर है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान दुनिया की 6ठी बड़ी आबादी भी है। दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान के अलावा जो बड़े बड़े ममालिक हैं उसमें इंडोनेशिया है, चाइना है, आपका इंडिया है और आपका अमेरिका है। पाकिस्तान दुनिया का 6ठा बड़ा मुल्क है और हैरानकुन बात यह है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें नौजवान आबादी सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान की आबादी का 50% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। वो लोग जिनकी उम्र 35 साल या 35 साल से कम है, हम उनको नौजवान कहते हैं। तो पाकिस्तान में 35 या अंडर 35 इयर्स ऑफ एज जो है उसकी तादाद 50% है। ये दुनिया में कहीं और नहीं है। इतनी बड़ी डायनामिक पॉपुलेशन नौजवानों की मालिक हैं हम इनसे कोई काम नहीं ले रहे। और पाकिस्तान सिर्फ इस आबादी को 50% आबादी को इस्तेमाल कर ले। 22 करोड़ की तकरीबन आबादी है पाकिस्तान में, जिसमें 11 करोड़ अफराद तकरीबन नौजवान नस्ल हैं हमारी। हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं स्टूडेंट आप सोच सकते हैं। और हैरानकुन बात यह भी है कि आलात सर्जरी में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, माइनर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। मेडिकल में आप देख लें पाकिस्तान कितना पीछे है, जबकि सर्जरी के आलात, माइनर आलात जिसमें फरसत वगैरह इस्तेमाल है, सीजर वगैरह इस्तेमाल होते हैं, तो उसमें पाकिस्तान पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहा है। इस वक्त दुनिया के 1 नंबर पर हैं हम, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स बहुत सारी हमारे पास क्वालिटीज़ हैं, हम इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन मैं यहाँ आपकी दिलचस्पी के लिए एक बात बताता चला जाऊँ कि आपने देखा होगा कि आज दुबई, चाइना, मलेशिया, सिंगापुर, ब्राज़ील, तुर्की, ये वो ममालिक हैं जो कई गुना आगे निकल गए हमसे। अगर कभी गौर किया आपने दुबई में ऐसा कौन सा कमाल है जो कि हमसे आगे निकल गया? क्या चीज़ है दुबई में? इन तमाम चीज़ों को चेक कर लें, दुबई पाकिस्तान से बहुत पीछे है। अगर आप चाइना को भी देख लें तो चाइना भी इन चीज़ों में पाकिस्तान से पीछे नजर आएगा आपको। इसी तरीके से सिंगापुर में तो है ही कुछ नहीं, आप जानते हैं वहाँ क्या है, कुछ भी तो नहीं। मलेशिया में भी वो चीज़ें नहीं हैं जो हमारे पास है। तो फिर ये ममालिक क्यों आगे निकल गए, हम क्यों पीछे रह गए? वैसे तो हम जिक्र करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन छोटी छोटी बातें आपको बताता चला जाऊं कि दुबई इसलिए आगे निकल गया कि वहाँ दुबई को शेख अल मखदूम और राशिद अल मखदूम मिल गया, वो आगे ले गया। उसी तरीके से मलेशिया को महातीर मोहम्मद मिल गया, वो कौम को आगे ले गया। और चाइना को माओ ज़ेडुंग जैसे आदमी मिल गए और चाइना आज दुनिया की सुपर पावर बनते जा रही है। आप जानते हैं इस बात को, चाइना की पोजीशन इस वक्त कहाँ है। और अगर आप सिंगापुर को देख लें तो वहाँ भी कोली क्योन जो है वो आपके पास वो कहाँ ले गया इसको आपको। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जो हमसे आगे निकल गई, रिसोर्सेज के लिहाज से ये हमसे आज भी पीछे हैं। लेकिन ये सारी की सारी कंट्रीज़ हमसे आगे निकल गई। वजह क्या है? शायद हमारी नालायकियाँ। लिए एक बताता चलूँ, मैं भी आपको बताया था कि पाकिस्तान सोने की पैदावार में 4थे नंबर पर है। पाकिस्तान में सूबा बलूचिस्तान में चागी के इलाके में एक छोटा सा कस्बा है, छोटा सा इलाका है रेकोडिक के नाम से। वहाँ एक पहाड़ी का नाम भी रेकोडिक है। ये 100 किलोमीटर तकरीबन, वैसे तो इसकी लेंथ ज़्यादा है, पाकिस्तान के एरिया में जो ये हिस्सा आता है वो तकरीबन 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर लंबी ये पहाड़ी सोने से लदी हुई है। ये रेकोडिक पहाड़ी हमने एक गैर मुल्की कंपनी को फरोख्त कर दी। और मज़े की बात यह है कि इस पहाड़ी से निकलने वाला सोना
25% पाकिस्तान को मिलने वाला था और 75% उस कंपनी को मिलने वाला था जो कि गैर मुल्की थी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कहीं इस पर फरोख्त के खिलाफ आवाज़ उठाई, बिलाकर हमने इस टेंडर को वापस लिया। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि ये हमारी पहाड़ी का केस आलमी अदालत इंसाफ में चला गया, वहाँ हम ये केस हाल ही में हारे हैं और तकरीबन $6 बिलियन का हमें जुर्माना आयद किया गया है। अपील हमारे पास अभी मौजूद है, इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, फिर अगली किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में नालायकी की वजह क्या है, पाकिस्तान पीछे रह गया क्यों। मेरा ख्याल है बहुत सी बातें तो आप समझ ही गए होंगे कि इतना कुछ हमारे पास मौजूद है, हम फिर भी पीछे हैं। हमारे पास ग्लेशियर्स हैं, हमारे पास पहाड़ हैं। पाकिस्तान दुनिया के 10 बड़े बड़े पहाड़ों में से 4 बड़े पहाड़ों का भी मालिक है। मैं आपको बताता चला जाऊं, दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी, पहाड़ी चोटी जो है वो पाकिस्तान में है। लेकिन हम पीछे क्यों हैं? सिर्फ एक ही वजह है कि हम अपने वतन से मोहब्बत नहीं करते। हमें कोई ऐसा लीडर चाहिए जो हमें लीड कर सके। हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि वो लीडर कौन है, हमें सिर्फ उस लीडर की तलाश है जो हमें आगे ले जाए, हमें सिंगापुर बना दे, हमें दुबई जैसी रियासतों से आगे ले जाए, हमें आज अमेरिका के बराबर ले जाए। ऐसा हुक्मरान दुआ करते हैं हमें जल्द नसीब हो। दरअसल कुछ मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं पाकिस्तान की ये हालत देखता हूँ। बतौर एक मईशत के स्टूडेंट के, बतौर मईशत के एक उस्ताद के, मेरा दिल बहुत जलता है इस बात के लिए कि इतना कुछ है पाकिस्तान के पास, फिर भी हम पीछे क्यों हैं। यकीन कीजिए, अगर हम अपने इन एसेट्स को इस्तेमाल कर लें तो पाकिस्तान चंद सालों में दुनिया की 5 बड़ी नेशंस में शामिल हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को देखने का शुक्रिया। पसंद करने की सूरत में, लाइक करने की सूरत में, शेयर करने की सूरत में, सब्सक्राइब करने की सूरत में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम, अपना ख्याल रखिए।